Good morning, 12th class. Today we are going to start the new unit, that is unit 4, planning and types of plan. In this unit we are going to study about what is planning, what are the features of planning, what are the importance of planning, what are the limitations of planning, and what is the planning process, and how many type of plans are there. So let's start first of all with the meaning of planning. It means thinking beforehand, or in other words you can say we deciding many activities like what to do, how to do, when to do, and by whom to do for attaining the objectives of business. ये कह रहे हैं कि देखिए प्लानिंग का मतलब सबसे पहले तो होता है थिंकिंग बिफोर हैंड. मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं उससे पहले थिंक करना, सोचना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्लानिंग. और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इन दिस फंक्शन वी आर डिसाइडिंग. इस फंक्शन में हम डिसाइड करते हैं मैनी एक्टिविटीज़ लाइक व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड बाय हुम टू डू, यानी कि कौन इसे करने वाला है. ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं या सभी जो एक्टिविटीज़ हैं ये डिसाइड की जाती हैं. क्यों? फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस इन द planning. Now come to features. What are the features of planning? First of all, planning focus on achieving objective. Planning जो है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? objectives को अचीव करने पे. कैसे? Management start with planning and planning start with setting objectives. ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट किस चीज़ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से. और प्लानिंग जो है वो किससे स्टार्ट होती है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से. ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एवर थॉट. ये कह रहे हैं कि अगर क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स यू डोंट हैव एनी गोल. अगर आपको कुछ अचीव ही नहीं करना है देन यू कांट थिंक अबाउट प्लानिंग. आप प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अचीव समथिंग देन देर इज़ नो नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट देयर देन देर इज़ ऑल्सो नॉट नीड ऑफ प्लानिंग. Second, planning is a primary function. Planning is also called a primary function because it is the first and foremost function of the organization. First and foremost means the first function and the important also. The other functions like organizing, staffing, या फिर आप कह सकते हैं directing, controlling, these all are performing later. First of all, you have to perform the function of planning. The next one is planning is pervasive. Pervasive means which is applicable everywhere. So since the job of planning is performed by the management at different level working in the enterprises. ये कह रहे हैं कि जो planning है that is performed by every department and at every level of management, whether it is top, middle or low level. हर एक लेवल पे आपको क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है. प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ही मे हैव टू he may be a managing, directing or performed or foreman of a company. मतलब चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, he also have to do planning. अगर वो क्या है, एक foreman है कंपनी में, then also he have to plan for the workers. And if we are talking about the non-business activities, even at our home activities, or we can say in a playground, if a match is there, then everywhere we need planning, because without planning no one can achieve their target. And the next one is planning is a continuous process. Obviously it is a continuous process because of following reasons. The one is planning are prepared for a particular कह सकते हैं टाइम एंड हैंस आफ्टर अ फिक्स्ड और एक्सपायरी पीरियड. ये कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाते हैं, और वो जो फिक्स पीरियड है या जो एक्सपायरी पीरियड है उसके बाद यू अगेन हैव टू डू प्लानिंग फॉर अदर थिंग्स. इफ़ प्लान आर फेल देन दे हैव टू बी रिवाइज्ड. और अगर प्लान आपके फेल हो गए मीन्स यू आर नॉट गेटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव देन यू हैव टू रिवाइज योर प्लान, and then also you have to again do the planning process. So we can say yes, planning is a continuous process because it is an endless process. Whenever a particular objective is achieved, you are going to start the planning for something next. After that, planning is futuristic. Obviously planning is futuristic. Why planning is futuristic? Because in planning we search the answer for the questions which are related to future.
ये कह रहे हैं प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हम उन क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करते हैं विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर, जो कि फ्यूचर से रिलेट करते हैं, जैसे व्हाट टू डू, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, इसे हम कैसे करने वाले हैं, वाई इट इज़ डन, इसे क्यों करेंगे, हुम इज़ टू बी डन, कौन इसे करेगा। दैट इज़ वाई इसीलिए प्लानिंग को हम क्या बुलाते हैं, फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है बिकॉज इसे हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, फ्यूचर के लिए। ऑल द क्वेश्चंस विच आर डिस्कसिंग इन प्लानिंग दैट ऑल आर रिलेटेड टू फ्यूचर, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। हाउ यू कैन से इट, लाइक इन प्लानिंग वी हैव मैनी वेज फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क एंड वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वे फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। ये कह रहे हैं कि प्लानिंग जब हम करते हैं देन वी विल सर्च, हम ये देखते हैं या कह सकते हो आप ये डेवलप करते हैं दैट वी कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क बाय वेरियस मेथड्स। आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक काम को करने के, बट यू हैव टू चूज़ ओनली वन। लेकिन आपको एक मेथड चूज़ करना होता है विच इज़ बेस्ट फॉर योर वर्क या विच इज़ बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन या विच इज़ बेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए बेस्ट है, आपकी फॉर्म के लिए बेस्ट है, आपके काम के लिए बेस्ट है, दैट मेथड यू आर गोइंग टू चूज़। तो क्योंकि आप चूज़ करते हैं, when you are going to choose one way, it is called decision making because you have a various alternatives। और जब आप different alternatives में से किसी एक alternative को choose कर रहे हैं, that means you are taking a decision। so definitely in planning process decision making is always involves। and come to the last one, that is planning is a mental exercise। why it is called a mental exercise? because a planner have to think many questions about what, how, when, and for all these he or she have to use mind। भाई देखिए कोई भी क्वेश्चन है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वाई टू डू, बाय whom टू डू, एवरीथिंग विच एवर यू आर गोइंग टू थिंक, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू यूज़ योर माइंड एंड एवरीथिंग यू हैव डन इन योर माइंड। आप अपने दिमाग से करते हैं, दिमाग में करते हैं, दिमाग में ही सारी चीज़ें सोची जाती हैं। तो क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किस रिलेटेड है, रिलेटेड टू द माइंड, आप अपने माइंड से ये सारा काम करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सो these are the features of planning. What are those? I am going to repeat it once more. The one is planning focus on achieving objective. The second one is planning is a primary function. The third one is planning is pervasive. The fourth one is planning is continuous. Fifth one is planning is futuristic. The next one is it involves decision making. And the last one is planning is a mental exercise. So thank you for listening. This is done for today.